thank God once again for this wonderful time we have to come together in Zoom to study God's word, especially from the letter that Apostle Paul wrote to the Thessalonian church. बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसा एक अवसर हमारे जीवन में फिर से एक मिला है कि परमेश्वर के सामने हम सब आ करके जो पौलुस के द्वारा लिखी हुई जो पहला थिस्सलुनीके का पत्री है उस पत्री को हम अध्ययन करें। Out of all the letters that Apostle Paul wrote, I believe that the letter that he wrote to the Thessalonian church is a very easy to understand. और जितने सारे पत्रियां हैं उन पत्रियों में से जो है सबसे आसान तरीके से समझने वाली जो पत्री है वो है पहला थिस्सलुनीकिया। Because as we are studying, we will find out that there is not much of doctrine that Apostle Paul is mentioning in this letter. और जब जैसे कि हम लोग इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो इस अध्याय में ज्यादा जो है सैद्धांतिक विषय नहीं पाते हैं। The major theme, and that was what we studied in the last class, the major theme that we can see throughout this letter is about the second coming of our Lord Jesus Christ. और मुख्यतः विषय जो है इस पत्री में हम लोग देखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह की आगमन की विषय। There are totally 5 chapters in this First Thessalonians, and in every chapter, as he ends every chapter, he mentions about the second coming of our Lord Jesus Christ. और इस जो पत्री है यहाँ पर 5 अध्याय हैं। हर अध्याय में जो अध्याय में हम लोग देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में हम पढ़ सकते हैं। And so because our Lord Jesus Christ is coming, particularly when he reaches chapter 4 and 5, he teaches us, and he's particularly teaching the Thessalonian believers on the implication or what is the consequence on how we should behave in connection to the return of our Lord Jesus Christ. और जैसे कि चौथा और 5वां अध्याय में हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक विश्वासी जो अनुकरण करने का प्रतिफल क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आगमन की जब बाट जोता है तो उसका प्रतिफल क्या होगा और उसके अनुसार उसको कैसे जीवन व्यतीत करना है। उन जो है स्वाभाविक विषय को हमारे जीवन में जो कैसे लागू कर सकते हैं उन विषय को हम लोग देख सकते हैं। And especially Apostle Paul, the first implication that he stresses on is about holiness. He says that as believers, we need to be holy because the return of our Lord Jesus Christ is soon. और पहली जो बात है हमारे जीवन में लागू करने के विषय को बताते हैं वो है पवित्रता। जो प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत करीब है, इसीलिए हमें बड़े जो है पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन की इंतजार करने की आवश्यकता है। The second implication, because our Lord is returned, towards the end particularly, he states that we need to love God and we need to love our fellow believers. और दूसरी बात बहुत गंभीर तरीके से वो जो है जोर देते हैं वो विषय ये है कि हम जो है परमेश्वर को प्रेम करें और उसके साथ साथ हमारे जो सहविश्वासी हैं उन विश्वासियों को भी हम प्रेम करें। So that is the major theme that Apostle Paul we can find is trying to communicate to the Thessalonian believers in this letter. और वही जो मुख्य विषय है वही विषय को ही प्रेरित पौलुस जो है थिस्सलुनीका का विश्वासियों को बताना चाहते हैं। Then in chapter 1, which we studied in last class, we see Apostle Paul is introducing himself, he's greeting the church, and the first thing he is doing is he is thanking God for the Thessalonian church. और मेरे प्यारो, जैसे कि पहला अध्याय में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि जो है सबसे पहले वो जो है प्रस्तावना करते हैं, अभिवादन देते हैं और फिर उस कलीसिया के लिए वो धन्यवादी भी हैं। And particularly we saw there are 4 reasons why Apostle Paul is thanking God for this Thessalonian church. और हम लोगों ने देखा था कि ऐसे 4 जो कारण हैं वो कारण के वजह से जो है थिस्सलुनीका का विश्वासियों को वो धन्यवाद देते हैं। From verses 1 to 4 we find that Apostle Paul is thanking God for this church because this church was an elected church, it was chosen by God. और मेरे प्यारो, पहली जो विषय है वो धन्यवाद देने का कारण यही है कि ये जो कलीसिया है वो चुनी हुई कलीसिया थी, इसीलिए वो धन्यवाद देते हैं।
And he's stressing, if you read verse 4, he says, we know, we are sure that you are chosen by God. और वो जो है बहुत जोर दे करके वो कहते हैं, वो कहने का मतलब यही है कि हम जानते हैं कि आप लोग जो है परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। Now we can, ask this question, how Paul, how do you know, how can you be so sure that this church is chosen by God? और जो है ये सवाल को आप और मैं पूछ सकते हैं पौलुस, जो है आप इतने जो है सही मायने में इतना श्योर हो करके आप कैसे कह सकते हैं कि एक जो कलीसिया है वो चुनी हुई कलीसिया है। I'm sure, even as believers, sometimes we also have this question, am I truly saved? How do I know that I am truly saved? और कभी कभार जो है हमारे जीवन में भी हम लोग जो है ऐसे ही सवालों को उठाते हैं। वो सवाल ये है कि मैं कैसे जानता हूं कि मैं उद्धार पाया हूं। In verse 3, Apostle Paul gives the answer, and particularly he mentions three things. और मेरे प्यारो, जैसे कि उस तीसरा आयत में हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो उद्धार कैसे पाए हैं, वो विषय को बताते हैं और जो है तीन ऐसे कारण हैं, वहां पर वो कारणों को देते हैं। Yeah, in other words, Apostle Paul is saying, I know you are chosen because firstly, when I see your faith, I can see that it is a faith that works. और पहली विषय को वो बताते हैं कि जब तुम्हारा विश्वास को मैं देखता हूं, वो विश्वास जो है कार्य करने वाला विश्वास है, इस बात को वो बताते हैं। It is not faith, just in words or just telling it out, but when I see your action, I can truly understand that it is a true faith that you hold. मेरे प्यारो, वो इस बात को बताते हैं, वो बताने की बात ये है कि जो है तुम्हारी बातों में ही जो है तुम विश्वास करते, ऐसा नहीं है, बल्कि वो विश्वास जो है तुम्हारे कर्मों के जरिए दिखता है। तब मैं समझ पाता हूं कि तुम्हारा जो है तुम लोगों ने उद्धार पाया है। In verse 9, we saw what was the action. The action was when they heard the gospel, they turned to the living God and they turned away from the idols. मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो है 9वां पद में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं, जब वे लोग विश्वास किया, उसका मतलब क्या है? जब पहले वे लोग मूर्ति पूजा में वे लोग सम्मिलित थे और फिर वो सब कुछ को त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के और वे लोग मन फिराए हैं। This is the same thing, that even Apostle James is teaching us. He's saying, if you want to know that you have true faith, you need to see your actions, whether your actions are in line with the faith that you hold. और हम लोग इस बात को भी देखते हैं, याकूब भी यही बात को कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारा जो है विश्वास यदि सच्चा है और वही विश्वास को यदि तुम पकड़ करके चलते हैं, तो फिर तुम्हारे कर्मों में जो है वो एक्शंस दिखने की बात जो है कार्यरत हो करके दिखाने की जरूरत है। The second reason Apostle Paul is very sure, he's saying, I know you are chosen by God because when I see your labor, when I see how you serve God, I can truly understand that you have true love towards God. और मेरे प्यारो, दूसरी कारण जो है देते हैं कि तुम लोग चुने हुए हैं। जब मैं तुम्हारी जो कार्य को देखता हूं, वो कार्य कौन सा है? ना तुम बहुत परिश्रम करते हो, वो है प्रेम का परिश्रम। वो काम को देखने के बाद, उस परिश्रम को देखने के बाद मैं समझता हूं कि तुम जो है चुने हुए लोग। We read that also in verse 9. They not only turned to the living God, but they also served. They sacrificed and they served for the living God. और मेरे प्यारो, आप देखिए, वे लोग जो है मूर्ति पूजा से वे लोग मन फिरा करके वापस आए, उतना ही नहीं बल्कि वो जीवित परमेश्वर का सेवा भी करने लगे थे। So if you want to answer the question, how do I know if I am truly saved? The first thing Apostle Paul says is, if you have faith, it must be seen in your actions, or in other words, work of faith. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि यदि तुम सचमुच में उद्धार पाए हो, यदि उद्धार पाए हो और विश्वास तुमने किया है, तो फिर वो विश्वास का काम जो है तुम्हारे जीवन से दिखने की जरूरत है। How do I know that I'm truly saved? That it shows in my labor, in my service. If I truly love God, it will be seen in the service that I have towards God. और मेरे प्यारो, यदि तुम कैसे जानते हो कि तुमने उद्धार पाया है, मैंने कैसे उद्धार पाया है?
तो फिर जो है वो उद्धार का फल जो है दिखने लगेगा। परमेश्वर को आप प्रेम करेंगे और उसके साथ साथ वो जो है परमेश्वर की, जो जीवित परमेश्वर की सेवा करने लगेंगे। And thirdly, finally, Apostle Paul was very sure that God has chosen them because of the third attitude that he saw in them. It was they were steadfast or they were patient in the hope that they believed. और हम लोग देखते हैं कि वो जो है क्यों वे लोग चुने हुए हैं, इस बात को पौलुस जो है सही मायने में जानते थे। तो वो बात ये है कि जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन की इंतजार कर रहे थे। In class 1, we saw the background. When Apostle Paul came to the Thessalonica, this place, there was a lot of persecution that they had to go through. और मेरे प्यारो, हम लोग जैसे कि प्रस्तावना में देखे थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि ये जो कलीसिया थी, बहुत सारे सतावटियों का सामना करते हुए ये कलीसिया गुजरी है। In Acts chapter 17, we read they even took out Jason, the person who had hosted Apostle Paul and Silas. They took him out and they beat him in the street. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि योशन करके एक जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो व्यक्ति की प्रेरित पौलुस और सीलास को उन्होंने जगा दिया था, वो जो है इसीलिए योशन को उन्होंने खींच करके निकाला और उसको जो है गलियों में ले जाकर के उसको बहुत पिटाई दी। Apostle Paul, had to run away from that place and he came to Berea. और देखो, प्रेरित पौलुस को उस जगह से भाग करके बेरिया में आना पड़ा। And even when he was in Berea, the Thessalonian Jews, who his persecutors over there, followed Apostle Paul to Berea and also tortured him there. मेरे प्यारो, अब देखिए कि जो है, जो थिस्सलुनीका का यहूदी लोग थे, वे लोग बेरिया में भी आकर के प्रेरित पौलुस को सताए और जो है परेशान किए थे। So it just gives us an understanding of how much persecution and suffering this church would have gone through. और मेरे प्यारो, अब देख करके देखिए ये जो कलीसिया है, कितना समस्या और जो है सतावटियों का सामना करते हुए ये कलीसिया नहीं गया होगा। Apostle Paul, in chapter 3, he will say, I even thought Satan would have taken you away. The church that I built would have all been broken off. और जो है तीसरा अध्याय में प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, मैंने तो ऐसा सोच भी लिया था कि शैतान जो है इस कलीसिया को नाश कर दिया होगा, आप लोगों को तीतर वितर कर दिया होगा करके प्रेरित पौलुस कहते हैं। And in chapter 3, he's saying, so I'm sending Timothy just to check on you, to encourage you and to exhort you. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों के सामने तीमुथियुस को भेज रहा हूं ताकि वो आकर के आपको जो है उत्साह दे और जो है आप लोग विश्वास में कैसे हैं, इन बातों को ध्यान रखने के लिए तीमुथियुस को मैं भेज रहा हूं। In chapter 3, Apostle Paul says, when Timothy came, he came with the good news, and I was happy to hear that you are still steadfast in the hope that you are holding. मेरे प्यारो, जैसे कि तीमुथियुस जो है वापस आता है और जो है उस वक्त तीसरा अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि आपकी बातों को, आपकी जो कामों को मैं देख करके मैं बहुत खुश हूं करके वो कहते हैं। Dear brothers and sisters, we can truly know that we are saved when our faith works, when we labor in love, and when we are steadfast in the hope that we are holding as we live in this wicked world. और मेरे प्यारो, जैसे कि इन विश्वासियों के जैसा हम भी जो है एक नमूना भरा जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम भी उस विश्वास को जो है पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह की आगमन का इंतजार कर सकते हैं। So from verses 1 to 4, they were not only an elected church. From verses 5 to 7, we see they were also an exemplary church. They encouraged and they set a good example for others. और मेरे प्यारो, ये जो कलीसिया थी, वे लोग चुनी हुई कलीसिया ही नहीं, बल्कि एक एग्जाम्पल, एक नमूना भरा, एक आदर्श कलीसिया थी। Verse 8, we also saw that they were an enthusiastic church where they not only received the gospel and kept it for themselves, but they were sounding it out like a trumpet to all the other people. और मेरे प्यारो, ये लोग जो है नमूना आदर्श कलीसिया ही नहीं, बल्कि एक ये जो कलीसिया थी उल्लसित और आनंदित कलीसिया थी। Your sound is working, huh?
Yes, brother, sound is coming. It is there now, yeah. Okay. आ रहा है सर, आ रहा है Yeah. And finally, you know, the fourth point that we saw was they were an expectant church. The last verse, verse 10, says that they waited for the return of the Lord Jesus Christ from heaven. और मेरे प्यारो, वो लोग जो है एक आशावादी कलीसिया थे। वो लोग क्या कर रहे थे? ना प्रभु यीशु मसीह की आगमन की इंतजार में वो कलीसिया थी। Then in chapter 2, Apostle Paul is going to remind this church certain things. और जो है हम लोग देखते हैं दूसरा अध्याय में प्रेरित पौलुस कुछ बातों को उनको याद दिलाते हैं। So chapter 1, Apostle Paul is thanking God for this church. और पहला अध्याय हम लोग देखते हैं कि ये कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस धन्यवादी हैं। From chapter 2, from verses 1 to 16, Apostle Paul is going to remind this church certain things. और मेरे प्यारो, जो दूसरा अध्याय में हम लोग देखेंगे तो पहला पद से 16 पद तक प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को कुछ बातों को लेकर के याद दिलाते हैं। Particularly, there are two things that he is going to remind this church. और जो है इस अध्याय को हम लोग देखेंगे तो फिर दो ऐसी बातें हैं, उन बातों को वो जो है याद दिलाते हैं। From verses 1 to 12, he is going to remind them how the gospel came to them. और पहला पद से लेकर के 12 पद तक प्रेरित पौलुस जो है उनको याद दिलाने वाले हैं परमेश्वर की जो संदेश है, सुसमाचार उनके पास कैसे आया था। Or in other words, about the ministry that Apostle Paul and Silas had done in this place of Thessalonians. और मेरे प्यारो, जो सेवकाई पॉल और जो है सीलास कैसे उन्होंने उस सेवा को किया था, उस बात को वो याद दिलाते हैं। And then from 13 to 16, he is going to remind them on how they received that gospel. और जो है 13 पद से 16 पद तक प्रेरित पौलुस इस बात को याद दिलाने वाले हैं कि ये लोग, ये कलीसिया जो है कैसे वो सुसमाचार का वचन को उन्होंने ग्रहण किया था। So these are the two things, you know, that Apostle Paul is going to remind them, how the gospel came to them, and secondly, how they received the gospel. और मेरे प्यारो, जो है ये दो ही बातों को प्रेरित पौलुस इस अध्याय में याद दिलाने वाले हैं। वो है जो सुसमाचार का वचन उनके पास कैसे आया और जो है उन्होंने उस सुसमाचार का वचन को कैसे उन्होंने ग्रहण किया था। So keeping, you know, this in mind, shall we read, brother, from verses 1 to 12? और ये सब कुछ मन में रखते हुए आइए हम लोग जो है इस अध्याय का पहला पद से लेकर के दूसरा अध्याय का पहला पद से लेकर के 12 पद तक पढ़ लेते हैं। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध में होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से, ना छल के साथ, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों का आदर नहीं चाहते थे, ना तुमसे ना और ना किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम भी तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुमसे परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भी भार ना हो। Okay, yes. So from this, you know,
10वां आयत और है, 10वां और 12 पढ़। 12. तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुमसे हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन और परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हारे राज्य और महिमा को बुलाता है। Thank you, Brother Deepu. Yes. So, from verses 1 to 12 is, a passage that every Christian who is ministering for God must actually read and remind himself constantly. मेरे प्यारो, दूसरा अध्याय हर एक जो प्रभु के दास लोग इस वचन को पढ़ करके अपने आप को जो है थोड़ी सी याद दिलाने की जरूरत है। Because if you paid attention and if you read verses 1 to 12 closely, we can see how Paul was ministering in this particular place. मेरे प्यारो, यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा या फिर इस अध्याय को पढ़ा होगा, तो प्रेरित पौलुस जो है सेवकाई के विषय में जो अपने बारे में किस तरीके से बताते हैं, उस बात को आप समझ सकते हैं। And when we look closely, we can find Apostle Paul acting in 3 ways. और मेरे प्यारो, यदि गहराई से इस वचन को हम लोग देखेंगे, तो प्रेरित पौलुस जो है 3 तरीके से कार्य करते हैं। In verse 4, we see Apostle Paul is saying that I have been entrusted with this gospel. In other words, we find Apostle Paul is being a faithful steward. और मेरे प्यारो, यदि चौथा पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रेरित पौलुस अपने बारे में कहते हैं, ये सुसमाचार जो है मुझे समर्पित किया गया है करके वो कहते हैं। Then in verse 7, we see Apostle Paul is acting like a gentle mother. और जो है यदि 7वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रेरित पौलुस जो है एक वो कोमल मां के समान वो कार्य कर रहे हैं। Then in verse 11, we find Apostle Paul is acting like a concerned father. और यदि 9वां पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रेरित पौलुस जो है ध्यान देने वाला एक पिता कैसे होते हैं, इस तरीके से वो कार्य करते हैं। So there are 3 ways how Apostle Paul was when he was ministering in the Thessalonian church. Firstly, he was a faithful steward. Secondly, he was a gentle mother. Thirdly, he was a concerned father. मेरे प्यारो, आप देख सकते हैं प्रेरित पौलुस जब थिस्सलुनीका का कलीसिया में थे और उस वक्त जो सेवा कर रहे थे, वो जो है उस कलीसिया में कैसे अपने आप को व्यवहार किया था। सबसे पहले तो एक अच्छा भंडारी के रूप में उन्होंने सेवा किया था। दूसरा जो है हम लोग देखते हैं कि एक जो है कोमलता से व्यवहार करने वाली एक मां के समान उन्होंने व्यवहार किया था। तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो है एक कार्य करने वाला एक पिता के रूप में भी उन्होंने सेवा किया था। So now we will concentrate from verses 1 to 6, chapter 2, verses 1 to 6, where we see Apostle Paul being a faithful steward of the gospel. और अभी हम लोग वर्तमान में हम लोग जो है पहला अध्याय से दूसरा अध्याय का पहला पद से 6वां पद तक हम लोग देखेंगे कि प्रेरित पौलुस एक विश्वास योग्य कैसे एक भंडारी के रूप में उन्होंने काम किया था, उस बात को हम लोग देखेंगे। And the first thing we can see is the manner of his ministry. और पहली बात को हम लोग देखेंगे तो उनकी सेवा का जो है प्रकरण कैसा था, वो कैसे सेवा कर रहे थे, उस बात को हम लोग देखेंगे। Yeah, from verses 1 and 2, we find Apostle Paul is saying, that we had to go through much conflict. और जो है पहला और दूसरा पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें जो है बहुत ही समस्याओं का सामना करते हुए, बहुत सारे उपद्रव का सामना करते हुए हमें गुजरना पड़ा करके कहते हैं। From the background, we saw how from Philippi, actually, Apostle Paul in a second missionary journey, he's going to the European country for the first time. और मेरे प्यारो, अब देखिए दूसरा सुसमाचार यात्रा के समय में प्रेरित पौलुस जो है सेवा करते वक्त जो है वो एशिया को छोड़ करके धीरे से वो यूरोप की ओर जाते हैं। Apostle Paul was not on a vacation trip. प्रेरित पौलुस कोई जो है छुट्टियां मनाने के समय छुट्टियां नहीं मना रहे थे। Because we read when he reached Philippi in Acts chapter 16, there was a lot of persecution, and from Philippi he had to run and come to Thessalonica.
मेरे प्यारो, अब देखिए जैसे ही उन्होंने फिलिपी में आए थे, वहां पर बहुत सारे सतावटी और समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर उनको जो है वहां से भाग करके थिस्सलुनीका में आना पड़ा था। And as he was ministering in Thessalonica, even there he came through persecution and he had to go through Berea. मेरे प्यारो, आप देखिए जैसे कि थिस्सलुनीका को आने के बाद भी उनको भी वहां पर बहुत सारे जो है ये सतावटी की सामना करना पड़ी, और फिर हम लोग देखते हैं वहां से भाग करके उन्होंने बेरिया में आए। As he was ministering in Berea, those people came and persecuted him. He had to catch a ship and he sailed from there and he went to Athens. और मेरे प्यारो, अब देखिए वहां पर भी बेरिया में भी लोग आकर उनको सताने लगे, इसीलिए जल्दी से भाग करके उनको एक जो है समुद्र में जो है जाने वाली एक जहाज को पकड़ करके उनको एथेंस में आना पड़ा। Dear brothers and sisters, the ministry that Apostle Paul did was in much conflict. It was always under persecution and suffering. मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस जो सेवा को उन्होंने किया था, वो सेवा आप देख करके देखो, बहुत सारे उपद्रव और समस्याओं का सामना करते हुए उस सेवकाई को जो है प्रेरित पौलुस ने किया था। You know, dear brothers and sisters, as we minister in God's word, we must not be discouraged when we go through sufferings and persecutions as we minister for God. मेरे प्यारो भाई और बहनों, आप और मैं भी जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे ही समस्या और जो है सतावटी का सामना हम लोग करते हैं। आइए अपने आप को जो है कभी भी निरुत्साहित ना करके प्रोत्साहित करके प्रभु का सेवा को करें। Because when we studied, Philippians, Apostle Paul in Philippians chapter 1, verse 29 and 30, there he says, we have received two things because we came to Christ. मेरे प्यारो, जैसे कि फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय 29 और 30 आयत में प्रेरित पौलुस इस तरीके से कहते हैं कि हम लोगों ने जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, तो दो चीजें हमें मिली है, उस बात को वो बताते हैं। Yeah, first thing he says, we have received eternal life because we have believed in Jesus Christ. और वो पहली बात को ये बताते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, इसीलिए हमें अनंत जीवन मिली है। And secondly, he says, don't forget, because we have come to Jesus Christ, we have also received suffering. और मेरे प्यारो, जो है प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोग आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो एक बात को ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं, और उसके साथ साथ हमने जो है उस कष्ट और दुख को भी हमने ग्रहण किया है, वो भी हमें मिली है करके प्रेरित पौलुस बताते हैं। That is why Apostle Paul was never surprised, or he never complained, or he never gave up his ministry, because he knew by coming to Jesus Christ, suffering is also granted to him. और मेरे प्यारो, इसीलिए प्रेरित पौलुस अपने जीवन में कभी भी चकित नहीं हुए, कभी भी जो है आश्चर्यचकित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो जो है ये कष्ट और दुख भी आएंगे, उसको भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में वो जो है परेशान नहीं हुए, व चकित नहीं हुए थे। And Apostle Paul, with all this affliction and persecution, he was able to build this church at Thessalonica. और मेरे प्यारो, आप देखिए सतावटी और जो है उपद्रव का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने ये जो थिस्सलुनीका का कलीसिया को उन्होंने स्थापित किया था। And because of the persecution, after Paul had went and left that place, he was so upset, he was so worried whether the church that he built there would collapse or will break away. मेरे प्यारो, जैसे कि वो उपद्रव के कारण जो है उनको जाना पड़ा था, इसीलिए बहुत ही ज्यादा प्रेरित पौलुस चिंतित थे कि वो कलीसिया सही मायने में स्थापित है या फिर जो है बिखर गई है। इसीलिए काफी वो जो है दुख और चिंतित में थे। But after hearing the good news from Timothy, we find in verse 1, he says, "Oh brothers, it is with great joy that I am hearing that my coming to you was not in vain, it was not waste." और मेरे प्यारो, जो है दूसरा अध्याय का पहला पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं, हे मेरे प्यारे भाइयों, मेरा जो वहां पर आना जो है कभी भी व्यर्थ नहीं गया, इस बात को वो बताते हैं। The question we can ask is, Apostle Paul, how are you able to minister in the midst of all the suffering and persecution?
हम लोग एक सवाल को पूछ सकते हैं। वो सवाल क्या है? हे प्रेरित पौलुस, आप जो है इतना उपद्रव और कष्ट और पीड़ा को सामना करते हुए आप इस सेवा को कैसा कर रहे थे करके एक सवाल हम लोग उठा सकते हैं। Or what is the strength that you hold on to? What is giving you that motivation and giving you the motivation, to boldly proclaim the gospel? और ये सवाल हम लोग कर सकते हैं, तुम्हें कौन सी ऐसी बात जो है तुम्हें पीछे से धकेल रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि इतनी हियाव और हिम्मत के साथ उस सुसमाचार को तुम फैलाते जा रहे हैं। Verse 2, Apostle Paul is giving that answer. He says, my boldness is in God. और जो है दूसरा पद में प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि मेरा हियाव जो है प्रभु यीशु मसीह में है, वह परमेश्वर में है। Yeah, he says that boldness is not coming from my strength. I am afraid, I am scared, but the boldness that I have is come from God. और वो कहते हैं कि ये जो हियाव और हिम्मत जो है मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत ही दुर्बल हूं, मैं तो डरा हुआ हूं, लेकिन ये हियाव और हिम्मत परमेश्वर की ओर से आता है करके प्रेरित पौलुस बताते हैं। Dear brothers and sisters, when we go through suffering, when we go through persecution, when we go through difficult times as we live in this world, like Apostle Paul, we must trust in God, because the boldness, the divine boldness comes only from our God. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप और मैं हमारे जीवन को इस संसार में व्यतीत करते हैं, जब कष्ट और दुखों का सामना करते हुए हमारा जो व्यवहारिक जीवन को हम लोग यहाँ पर बिताते हैं, तो हमें जो है कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारी भरोसा उस स्वर्गीय हियाव और हिम्मत के जो परमेश्वर की ओर से आता है, उसको पाने के लिए लालसा रखने की जरूरत है। So the first thing, Apostle Paul, by being a faithful steward, the manner of his ministry was in much problem, but still he trusted and he had the boldness of God. मेरे प्यारों, पहली बात को हम लोग देखते हैं कि जो है प्रेरित पौलुस एक विश्वास योग्य भंडारी कैसे बना था, क्योंकि वो जो है ताकत और हियाव वो जो जीवित परमेश्वर की ओर से आ रहा था। Secondly, what was the message that Apostle Paul was sharing in all these places? और मेरे प्यारों, दूसरी बात को हम लोग देखते हैं कि वो जो संदेश इस जगहों में व ऐसे स्थानों में कौन सी ऐसी संदेश को वो जो है सुना रहे थे। In verse 2 he says, we declare to you the gospel of God. और दूसरी पद में इस बात को बताते हैं कि उस परमेश्वर का सुसमाचार को हम जो है प्रचार करते हैं। In verse 8 he says, we are ready to share with you the gospel of God. और जो है 8वां पद में इस बात को कहते हैं कि हम उस परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तैयार है करके बताते हैं। Verse 9 he says, we proclaim to you the gospel of God. और जो है 9वां पद में इस बात को बताते हैं, हम जो है उस परमेश्वर का वचन को बस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हम तैयार हैं। Dear brothers and sisters, the only message that Apostle Paul had was to proclaim, was to declare the message of God, the gospel of God that he had received from our Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है एक ही एक बात को जो है प्रचार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने वो परमेश्वर का सुसमाचार को ग्रहण किया था, वही सुसमाचार को वो प्रचार कर रहे थे। It was not his opinions, it was not his experience. What he's sharing is the gospel of God. मेरे प्यारों, ये जो है उनकी ओर से कोई मत नहीं थी, वो उनके अनुभव नहीं थी, बल्कि वो जो है परमेश्वर का सुसमाचार को ही वो जो है सुनाते जा रहे थे। Apostle Paul was a faithful steward where he was proclaiming the gospel that was entrusted to him by God. मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि एक जो है प्रेरित पौलुस एक विश्वास योग्य भंडारी व दास था, और उन्होंने क्या कर रहे थे ना, परमेश्वर का उस सुसमाचार को वो सुनाते जा रहे थे। The word steward
it actually means a person who does not own anything, but he possesses everything of his master. मेरे प्यारो, स्टीवार्ड का अर्थ होता है, व भंडारी का अर्थ होता है वो जो सामान व रकम जो उसके पास जो कुछ भी है वो उसका नहीं है, उसकी मालिक का वस्तुओं को व चीजों को वो देखभाल करता है। You know, an example from the Old Testament, Joseph was a steward, where we find Potiphar giving all his belongings to Joseph, and he was taking care. मेरे प्यारो, जैसे कि यूसुफ का जीवन में हम लोग देखते हैं, वो एक अच्छा भंडारी था। पोतीफर ने जो है उसको विश्वास योग्य पात्र समझ करके अपने घर के सब कुछ जो कुछ भी था, सब कुछ जो है हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के हाथों में समर्पित कर दिया था। And one of the most important character of a steward, you know what it is? It is faithfulness. और मेरे प्यारो, एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्वभाव एक भंडारी का होता है, वो है विश्वास योग्यता। Because a steward does not own everything, but he possesses everything, and so he needs to faithfully act in that way. और मेरे प्यारो, जैसे कि एक भंडारी जो है उसका खुद की सामान नहीं होती है और खुद की चीज नहीं होती है, लेकिन उसको क्या करना है ना, विश्वास योग्यता के साथ उसको कार्य करने की आवश्यकता है। Dear brothers and sisters, like Apostle Paul, we are also a steward. We have received the gospel, and it is our work to spread it out and to proclaim it to the world. मेरे प्यारो भाई और बहनों, जो है जैसे कि प्रेरित पौलुस के समान आप और मैं भी उस परमेश्वर का सुसमाचार को ग्रहण किया है। हमें भी उस सुसमाचार को दूसरों के सामने सुनाने की आवश्यकता है। The question we must ask is, are we faithful in proclaiming this gospel to this world? अभी एक सवाल पूछने की आवश्यकता है। वो सवाल ये है, क्या मैं विश्वास योग्यता के साथ ये परमेश्वर का संदेश व सुसमाचार को मैं सुना रहा हूं क्या? 3 times Apostle Paul in verse 2, verse 8, verse 9, he says, we proclaim only the message or the gospel of God. और मेरे प्यारो, 3 बार प्रेरित पौलुस जो है कहते हैं कि हम लोग जो है उस परमेश्वर का सुसमाचार को हम सुना रहे हैं, जैसे कि 2 पद, 8वां पद और 9वां पद में हम लोग देख सकते हैं। Thirdly, we can also understand the method of or how Apostle Paul did his ministry. मेरे प्यारो, तीसरी बात को हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कैसे, किस तरीके से जो सुसमाचार की सेवकाई को उन्होंने किया था। In verse 3, as we read, Apostle Paul did not use the method to trap people. मेरे प्यारो, आप देखिए 3 पद में प्रेरित पौलुस जो है जब उपदेश दे रहे थे, किसी को किसी भी लोगों को वो भरमा नहीं रहे थे, किसी को भी जाल में फंसा नहीं रहे थे। It was not to deceive people or to cheat people and to bring them to Christ. और जो है प्रेरित पौलुस जो है क्या है ना, दूसरों को धोखा दे करके या फिर छल करके जो है प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का वो प्रयास नहीं कर रहे थे। You know, in chapter 1, verse 5, Apostle Paul says how he did it. He spoke the word, and it also had the power of the Holy Spirit along with it. मेरे प्यारो, अब देखिए पहला अध्याय 5वां पद में हम लोग देखते हैं, उन्होंने तो वचन को प्रचार किया और वो वचन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी और उन लोगों के जीवन में वो वचन कार्य किया था। Verse 4, Apostle Paul says God had actually tested them. They have been approved by God before God had entrusted the gospel of God to them. और मेरे प्यारो, जो है 4 पद में हम लोग देखते हैं, जो है वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे, परमेश्वर उन सभी चीजों को जांचता था और क्या है ना, परमेश्वर के ओर से ही प्रमाणित प्रमाण मिला था उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। So Apostle Paul was saying the method we are doing is not to please men. It was not by flattery. It is not by greed, or it is not, to receive glory from people, but we are doing it to please God alone. मेरे प्यारो, अब देखिए उन्होंने जो सुसमाचार का प्रचार उन्होंने जो किया है, लोगों को प्रशंसा करने के लिए नहीं है और जो है छल करके जो है सेवा करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उस सुसमाचार का प्रचार हम करते हैं। He uses this word, you know.
अब देखिए एक शब्द को वो प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करते हैं, तुम जानते हो, तुम जानते हो। In other words, they were witness. And also in verse 4, he says, even God is witness about, you know, how we, the method of the ministry that we did when we were with you. और अब देखिए प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, तुम जानते हो कि आपके साथ हम लोग जब रहते थे उस वक्त हम लोगों ने परमेश्वर की सेवा को कैसे की है, और प्रभु गवाह है करके इस बात को भी कहते हैं। In verse 6, we also see that the method of the ministry was in humility. He was doing it in humbleness. He says he could have commanded like an apostle, but he did not do it. He did it with humility. मेरे प्यारों, 6वां पद में हम लोग देखते हैं वो जो है लोग जो है उसको तारीफ कर सके इस तरीके से नहीं, बल्कि उनकी जो सेवकाई थी बड़े नम्रता के साथ परमेश्वर की उस सेवा को उन्होंने किया है। So from verses 1 to 6, we see how Apostle Paul was a faithful steward. और जो है पहला पद से हम लोग 6वां पद में हम लोगों ने देखा था कि प्रेरित पौलुस एक कैसे विश्वास योग्य एक सेवक थे, विश्वास योग्य एक भंडारी थे। Dear brothers and sisters, let us take some time to examine our own hearts and ask the question, am I a faithful steward in the small ministries that I'm doing? मेरे प्यारों, आज आइए आप और मैं एक सवाल को कर लें, क्या ये जो छोटा सा सेवकाई मैं कर रहा हूँ, उस सेवकाई में क्या मैं विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का सेवा कर रहा हूँ क्या? You know, ministering for God is not only standing up and preaching, but it also starts from all the small things, right from taking the chair to walking in the road and carrying things. In all these things, we need to ask the question, am I being faithful? Am I being a faithful steward to God? मेरे प्यारों, जो है वहां जो है गलियों में जा करके खड़े होकर के प्रचार करना ही जो है सेवा नहीं होती, बल्कि छोटे से छोटे सामान को उठा करके ले जाना, क्या जो है कोई ट्रैक्स हो या चेयर हो, कुछ भी उठा करके सही तरीके से ले जाना, ये भी जो है विश्वास योग्यता की सेवकाई को दर्शाता है। क्या मैं विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर रहा हूँ क्या? Because you know, God is not looking at what you are doing, but God is only looking at one thing. Are we faithful in whatever we do? मेरे प्यारों, जो है परमेश्वर इस बात को नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो है परमेश्वर आपको देखता है आप किस तरीके से कर रहे हैं। That is why Apostle Paul says we are doing it to please God. Why are we doing it to please God? Because He is the one testing our hearts. He knows the real intention. मेरे प्यारों, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम लोग जो है इस सेवा को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा एक व्यक्ति है जो मनुष्य का दिलों को वो परखता है, जांचता है। Then in 7 to 8, we see the second action of Apostle Paul, the way he was acting as he was ministering among the Thessalonian believers. We find he's using a term as a gentle mother. मेरे प्यारों, फिर बाद में 7वां पद से लेकर के हम लोग जो है 8वां पद तक हम लोग देखते हैं एक ऐसी परिभाषा को यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करते हैं, वो है एक कोमलता व शालीनता की माँ जो है किस तरीके से व्यवहार करती है, उस बात को हम लोग देखते हैं। Yeah, we all know, you know, the character of a loving mother. A mother is someone who uses, authority with love. मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि एक जो है प्रेम और ध्यान देने वाली एक माँ जो है किस तरीके से अपना अधिकार को वो इस्तेमाल करती है, बड़े प्रेम के साथ ही उस अधिकार को वो इस्तेमाल करती है। Yeah, there are many times, and especially we've all been brought up with mothers. We know that there are times when we are shouted, they beat us, and the reason they do it is all because they love us. It is all undergirded with love. मेरे प्यारों, जो है आप जानते होंगे कि आप लोग जो है अपने माता पिता के जो है परवरिश में आप लोग पाले बड़े हैं, तो आप जानते हैं वो लोग कभी कभार हमको फटकारते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। वो किस तरीके से होता है कि बड़े हमको प्रेम करते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से काम करते हैं। Apostle Paul is also saying, like a nursing mother, I was faithfully feeding you. I was giving you the word of God. मेरे प्यारों, आप देखिए कि जो है हम लोग देखते हैं जैसे कि एक माँ की तरह
एक माँ को जो है किस तरीके से लालन पालन करते हैं, उस तरीके से मैं भी तुमको लालन पालन कर रहा था करके प्रेरित पौलुस बताते हैं। You know, when we are in ministry, sometimes, I mean, in most of the time, we must be like a gentle mother where we need to feed the word of God to others. मेरे प्यारो, जैसे कि आप और मैं सेवकाई में हैं, हमें भी कभी कभार जो है जो है कोमलता की माँ के समान होने की जरूरत है, और कोमलता के साथ जो है एक माँ के समान परमेश्वर का वचन को उन्हें सिखाने की जो है देने की आवश्यकता है। I'm sure, you know, we all have children and we know how hard it is to teach them and to make them obey. मेरे प्यारो, हम सबके पास जो है बच्चे हैं, तो जो है आप लोग जानते होंगे कि बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देना और उनको जो है आज्ञाकारी बनाना कितना परेशानी और जो है तकलीफ की बात है, आप जानते होंगे। Just because you told them one time, they will not obey. You have to repeatedly, patiently keep teaching them. मेरे प्यारो, एक बार यदि आपने कह दिया तो फिर जो है आपकी बातों को वे लोग जो है नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं मानेंगे। आपको बार बार उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है। And if you know, this child is a teenager, he is going to rebel, he is going to question you back. मेरे प्यारो, यदि वो बच्चा यदि सचमुच में एक जो है 13 साल के बाद जो उम्र होती है, वो उम्र एक ऐसी उम्र है कि वो जो है एक सवालात्मक का उम्र है। वो आप लोग कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर वो सवाल खड़ा करता रहेगा। But dear brothers and sisters, as we involve in Christian ministry, we must, you know, faithfully and patiently nourish our children. और मेरे प्यारो, जैसे कि आप और मैं जो है मसीह का परमेश्वर की सेवकाई में हैं, आपको और मुझे जो है विश्वास योग्यता के साथ, जैसे कि माँ अपने बच्चों को संभालती है, खिलाती है, पिलाती है, वैसे ही आपको और मुझे काम करने की आवश्यकता है। Another important thing is we can only nourish, we can only give food if we receive good food. मेरे प्यारो, आप और मैं कब हम लोग लालन पालन करके जो है उन बच्चों को बढ़ा सकते हैं? आप और मैं यदि अच्छा भोजन को जब ग्रहण करेंगे, तभी ही जो है उनको भी अच्छी भोजन दे करके लालन पालन कर सकते हैं। So dear brothers and sisters, we must be careful on what we are feeding on. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे भी जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप और मैं कैसी जो है वचन को उनको सिखा रहे हैं। Only if we feed on God's word, only then we can faithfully feed our fellow believers. मेरे प्यारो, जब हम लोग जो है विश्वास योग्यता के साथ जो है उस वचन को हम खिलाते पिलाते रहेंगे, तभी ही उनके जीवन में विश्वास योग्यता को हम लोग देख सकते हैं। Verse 8, we find Apostle Paul not only is feeding them, he's also protecting them like a mother. He says, we are ready to even give our own selves for you. मेरे प्यारो, आप देखिए प्रेरित पौलुस जो है क्या है ना, उन लोगों को लालन पालन कर रहे हैं, उतना ही नहीं बल्कि जो है उन लोगों को हर तरीके का जो है परेशानियों से उनको बचाने के लिए वो तैयार थे, अपना प्राण को भी देने के लिए तैयार थे। In other words, he was not only meeting their spiritual needs, even for their physical welfare, he ensured that he gave himself totally for it. और मेरे प्यारो, आत्मिक जो जरूरत थी, उन जरूरतों को ही वो पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि जो शारीरिक आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रेरित पौलुस तैयार थे। So from verses 1 to 6, we saw Apostle Paul as a faithful steward. और मेरे प्यारो, जो पहला पद से 6वां पद तक हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस एक विश्वास योग्य भंडारी थे। Verses 7 and 8, a gentle mother. और जो है 7वां पद से लेकर के 8वां पद तक हम लोगों ने देखा कि जो है एक जेंटल माँ के समान, एक कोमलता की माँ के समान उन्होंने काम किया। Then from verses 9 to 12, Apostle Paul was acting as a concerned father. और मेरे प्यारो, जो है 9वां पद से लेकर के 12वां पद तक हम लोग देखते हैं कि एक ध्यान देने वाला एक पिता के समान उन्होंने कार्य किया है। You know, we all, a few of us are fathers and we know the role of a father. और मेरे प्यारो के हम लोगों में से जो है बहुत सारे लोगों के पास पिता है, और हम लोग जानते हैं कि पिताजी कैसे ध्यान देते हैं। You know, a father will
provide for his children. He will not take from the children. मेरे प्यारो, पिताजी जो है अपने बच्चों से कभी छीन करके नहीं लेते, बल्कि पिताजी जो है उनकी बच्चों का जरूरतों को वो पूरा करने की कामना करते हैं। That is what Apostle Paul is saying in verse 9. I am toiling hard. When I get time, I'm doing my tent making and my work, and I make sure I get the money for myself. मेरे प्यारो, जैसे कि 9वां पद में देखते हैं कि वो परिश्रम कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। जैसे कि मैं तंबू बनाने जा रहा हूं, उस वक्त जो है मैं कष्ट और परिश्रम करते हुए कुछ पैसा कुछ जो है धंधा करने का जो है काम कर रहा हूं। He says he was not a burden to them because as a father, he did not want to burden his children to supply his needs. मेरे प्यारो, आप देखिए, जैसे कि अपने बच्चों के ऊपर जो है कभी भी बोझ लादने का प्रयास नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसे पिता थे कि वो अपना जरूरतों को खुद जो है वो उस जरूरतों को पूरा करने की प्रयास कर रहे थे। And then, in verse 10, we see that Apostle Paul was also setting a good example. और 10वां पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उन लोगों के लिए एक नमूना, एक आदर्श ठहरे रहे हैं। Most of the time the children, they have their fathers, especially girls, they have their fathers as a model, as a hero. और मेरे प्यारो, आप देखते हैं कि जो है बहुत बार हम लोग देख सकते हैं कि जो है बच्चे होते हैं, लड़का या लड़की, उनके लिए उनका पिताजी हीरो के समान होते हैं। Apostle Paul knew that he was a father, and so in verse 10 he set that example. He says, how we were holy, we were righteous, and we were blameless when we were with you, when we were ministering with you. और मेरे प्यारो, हम लोग जो है 10वां पद में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है उन लोगों के साथ रह रहे थे, तो अपने बारे में वो गवाही दे रहे हैं। वो गवाही ये है कि आप लोगों के साथ हम लोग जब रहते थे, उस समय कैसे पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोष होकर के रहते थे। He says, you know it, you saw it, and even God is witness about the example that we have set. और मेरे प्यारो, आप देख सकते हैं कि जो है आप जानते हो कि आप लोगों के सामने कैसे हम लोग एक नमूना को आप लोगों के सामने रखा है, इस बात को वो बताते हैं। You see, Apostle Paul, like a concerned father, he has set a very good example for the Thessalonian church. और मेरे प्यारो, आप देख सकते हैं एक ध्यान देने वाले पिता जो है कैसे होते हैं, उस तरीके से एक नमूना जो है उस कलीसिया के लिए उन्होंने रखा है। Then in verses 11 and 12 we see the words of this concerned father. और मेरे प्यारो, 11 और 12 पद में हम लोग देखते हैं कि जो है इस ध्यान देने वाले पिता का मुंह से कैसे वाक्य निकलती है, वचन निकलती है, उन शब्दों को हम देख सकते हैं। In verse 12 he uses 3 words. He says, we exhorted you, we encouraged you, and we charged you. और जो है 12 पद में वो इस बात को कहते हैं, verse 12 और verse 11। Verse 12, brother. In English it's verse 12. We exhorted you, encouraged you, and charged you. ओके, सो जो है हम लोग यहाँ पर 11 पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि आप लोगों को जो है कैसे हम लोग जो है उपदेश देते थे, कैसे तुम लोगों को शांति देते थे, और उसके साथ साथ कैसे तुम्हें हम समझाते थे, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। Yeah, like a father, he trained them, he instructed them, and made sure that they walk in a way that is pleasing unto God. और मेरे प्यारो, एक पिता होने के नाते उन लोगों को कैसे उपदेश दिया, कैसे शांति दिया, कैसे उन्होंने समझा रहे थे, उस बात को हम देख सकते हैं। In verse 12 he gives that reason why he is doing this, so that they will be able to walk in a manner worthy unto God. मेरे प्यारो, 12 पद में जो है वो इस कारण को देते हैं। वो कारण क्या है? ताकि तुम लोग जो है क्या करो ना, परमेश्वर के सामने एक योग्यता के साथ एक योग्य होकर के चाल चलन करो। Dear brothers and sisters, we are now going to disperse and we are all going to get involved in our routine work. मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग बिछड़ने वाले हैं। हम जो है इस मीटिंग से जो है बिछड़ने वाले हैं और अपने अपने कर्म क्षेत्र में हम लोग जाने वाले हैं। Let us be reminded that as we live in this world, we have a ministry that we need to minister for God wherever we are.
मेरे प्यारो, आइए जहां कहीं भी हम लोग होंगे वहां पर जो है एक प्रभु का सेवक के नाई हम लोग काम करने की प्रयास करें। This morning, we must ask the question, are we being a faithful steward in whatever ministry we are doing for God? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सुबह के वक्त में एक सवाल अपने आप को हम पूछ लें कि क्या जो है एक विश्वास योग्य भंडारी के समान हम लोग काम कर रहे हैं क्या? Am I being like a gentle mother, being careful, nurturing, and protecting the circle that God has given me? और क्या एक सवाल को हम लोग पूछ लें कि जो है एक कोमलता के स्वरूप, कोमलता की माँ के समान मैं जो है काम कर रहा हूँ क्या? मेरे चारों ओर जो है जो बच्चे हैं या विश्वासी हैं, उन लोगों को क्या मैं जो है उन लोगों को संरक्षण दे रही हूँ क्या, दे रहा हूँ क्या? इस सवाल को पूछ ले। The question we can ask is, like a concerned father, am I setting a good example so that others can look at me and follow? मेरे प्यारो, जैसे कि जो है क्या मैं एक जो है ध्यान देने वाला एक पिता के समान मैं काम कर रहा हूं क्या? और मैं एक पिता होने के नाते उन लोगों के लिए मेरे जीवन को एक नमूना जीवन में व्यतीत कर रहा हूं क्या? May God help us to, like Apostle Paul, practice this in our daily life, the things that we have learned from Apostle Paul through God's word, that we might be able to apply it so that we might walk in a manner that is pleasing and worthy unto God. मेरे प्यारो, जैसे कि प्रेरित पौलुस आपके और मेरे लिए एक उदाहरण का कारण बने कि उनके जीवन से हम सीखें और परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण करके जो है क्या है ना एक योग्यता की चाल चलन से हमारे जीवन को व्यतीत करें, जिस जीवन से जो है परमेश्वर की महिमा होती रहे। So chapter 2 verses 1 to 12, we saw Apostle Paul reminding the ministry that he did at Thessalonica to the Thessalonian believers. और मेरे प्यारो, हम लोगों ने देखा कि दूसरा अध्याय एक ऐसी अध्याय थी कि प्रेरित पौलुस जो सेवा को थिस्सलुनीका में किया था, वो सेवा कैसे उन्होंने किया था, उस सेवकाई को थिस्सलुनीका विश्वासियों को वो याद दिलाते हैं। So we'll continue in the next session, brother. Thank you, Brother Sivar, for translating. Brother, I am grateful to you and thankful to you, brother, for the wonderful message that has come out from your mouth. That is God's word. Thank you so much, brother, for your wonderful message. Really, it was heart-touching, brother. As a servant of God, we are. Let us be faithful in every activity that we do. Brother, it is really, I'm not able to control the feelings. Really, I'm telling you, it has touched me.